নবীজির গোলামের, নবীজির গোলামের, মৌলাজির গোলামের কোনো চিন্তা নাই। চলো নবীজি জান্নাতে মদিনাতে যাই, চলো নবীজি জিয়ারতে মদিনাতে যাই। গাহে গুন গান তোমার খুদ খোদা তাআলা, সুবহানাল্লাহ বলুন না, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। গাহে গুন গান তোমার খুদ খোদা তাআলা, মখদুম গাহে তোমার শত সুরমালা, ঝরে সুধা বিরত করুণা ফুরায়। চলো নবীজি জান্নাতে মদিনাতে যাই, চলো নবীজি জিয়ারতে মদিনাতে যাই। নবীজির গোলামের, মৌলাজির গোলামের কোনো চিন্তা নাই। চলো নবীজি জান্নাতে মদিনাতে जाए। अल्लाहुम्मा आमीन बोले। जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, जिसको जो कुछ भी मिला आपके दरवाजे से, खुद देता है खुदा आपके दरवाजे से। हाँ 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 खूब देता है खुदा आपके दरबार। से मदीना वालार हाजिरी আমরা চাই কি চাই না? আহা একটা वाकया মনে পড়ে গেল। হযরত ইমাম হযরত তফতাজানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তফতাজানি উনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদির শেখ, আমার গৌসুল আজমের দস্তগীর এর শেখের তরিকায় যিনি উপরে আছেন ইমাম তফতাজানি রাদিয়াল্লাহু তাআলা, তিনার সময়কার সময় তিনি যখন স্টুডেন্ট অবস্থায়, ছাত্র অবস্থায়, তিনি তেনার ক্লাসের মধ্যে, শ্রেণী কক্ষের মধ্যে এমন ভাবে পরিচিত ছিলেন যে কেউ যদি কাউকে জাহেল ডাকে, মূর্খ ডাকে, তেনার শিক্ষকরা, ওস্তাদরা, শেখরা কেউ যদি পড়া না পড়ে তাকে বলতো তুমি জাহেল হইছো না, এটা বলতো না, বলতো তুমি কি তফতাজানি হয়ে গেছো। অর্থাৎ এভাবে তেনাকে তিরস্কার করা হতো। তিনি এরকম অজ্ঞ ছিলেন, এলেম ছিলেন বা এলেম ছিলেন না, তেনার এলেম ছিল না। তিনি প্রতিদিন এভাবে যখন দেখতেছেন যে আমি তো জাহেল, আমার কোনো এলেম নাই, প্রতিদিন রাতে কিতাবটা খুলে কোরআন হাদিসগুলি খুলতো আর চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলতো, আল্লাহ আল্লাহ আমাকে ইসলামের খাদিম হিসাবে কবুল করে নাও, আল্লাহ আমি তফতাজানিকে তুমি বানিয়েছো, তোমার নবীর গোলামির মধ্যে আমাকে এই কোরআন হাদিস বুঝার মতো তৌফিক দান করো আল্লাহ, আমি খেদমত করতে চাই। তিনি সব সময় কাঁদতে থাকতেন। তখন একদিন যখন কাঁদতে থাকলেন, পরের দিন সকাল হলো, তফতাজানি ক্লাসে গেলেন। যখন ক্লাসে গেলেন, ওস্তাদ প্রশ্ন করছেন, শেখ ওস্তাদ প্রশ্ন করছেন। প্রশ্ন করার পর ইমাম তফতাজানি এমন ভাবে প্রশ্নের উত্তরগুলি দিচ্ছেন মনে হচ্ছে একটা অনেক বড় একটা সাপ অজগর ছোবল মারে। প্রত্যেকটা প্রশ্নের উপরে ইমাম তফতাজানি এমন ভাবে ছোবল মারছিলেন, মনে হচ্ছে ইলমের উপর পণ্ডিত্য হাসিল হয়ে গেছে। এই অবস্থা থেকে শেখ জিজ্ঞেস করছেন, তফতাজানি একদিনে এক রাতে তোমার এরকম পরিবর্তন কিভাবে হলো, তুমি এরকম ইলমদার কিভাবে হয়ে গেলে?
তখন তফতাজানি বলছেন, ইয়া শেখ, ये अकेले बात करने की बात है, ये अकेले बात करने की बात है, सबके सामने नहीं बता सकता। तब सबको निकाल कर इमाम तफ्ताजानी उनके शेख हो मुर्शीद से कहने लगे कि क्या बताऊं कल रात क्या हुआ था, क्या बताऊं कल रात क्या हुआ था। मैं किताब लेकर रो रहा था, कुरान हदीस पढ़ना चाहा कि या अल्लाह मुझे कुरान हदीस इस्लाम के खादिम कबूल फरमा ले, मैं खादिम बनना चाहता हूँ। मैं रो रहा था, अचानक दरवाजे में दस्तक हुई, अचानक दरवाजे में दस्तक हुई। किसी ने पूछा, हे तफ्ताजानी तुम अंदर हो? तफ्ताजानी ने कहा, क्यों? हाँ मैं हूँ। कहा कि बाहर आओ, घूम कर आते हैं, सैर करके आते हैं। इमाम तफ्ताजानी ने कहा, नहीं, मुझे सैर करने के लिए, घूमने के लिए अल्लाह नहीं बनाया, मुझे कुरान हदीस, कुरान सुन्ना के खादिम बनने के लिए मुझे बनाया गया है। फिर दस्तक हुआ, फिर पूछा गया, फिर उन्होंने इनकार की कि नहीं नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तीसरी बार दस्तक हुआ, कहा कि कौन है जो दस्तक करे, दरवाजा दस्तक दे रहे, कौन है आप? तब कहा कि ऐ तफ्ताजानी, तुम नहीं चाहोगे कि मुस्तफा जाने रहमत के साथ कुछ घूम कर आए, कुछ सैर कर आए। तफ्ताजानी का पगड़ी टोपी कहां पर गया, कहा किताब, सब छोड़कर दरवाजा जाकर दरवाजा खोल दिया, देखा कि आका खड़े हैं, आका खड़े हैं। दिल से चाहे अगर कोई भीख आपसे मांगता है 10 रुपया दीजिए, 10 रुपया, आप इनकार करते रहे, इनकार करते रहे। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन इनकार करते रहे। एक दिन ना एक दिन आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी होगा, आप कहेंगे 10 रुपए दे देता हूं, 10 पैसा दे देता हूं। इसी तरह आका को पुकारते रहो लोगों, आका को पुकारते रहो। वो सुनता है, वो चाहता है कि मेरा उम्मत मुझे पुकारे। आका को पुकारते रहो, किसी ना किसी दिन दरवाजा खुलेगा, सारे पर्दे उठेंगे, छीन फाड़ के खुदा वो पर्दा छीन देगा और सामने मुस्तफा का जमाल होगा, सामने मुस्तफा का जमाल होगा। तब जाकर तफ्ताजानी ने कहा, या शेख, कल ये हुआ कि आका ने तशरीफ लाए और सीना से सीना लगाकर सारे इल्म मुझे दे दी। अब मेरा इल्म का हकीकत मारिफत ये है कि मेरे तरीकत से जुनैद बगदादी भी होगा, मेरे तरीकत से गौसुल आजम दस्तगीर भी होगा, गौसुल आजम दस्तगीर भी होगा, मेरे तरीकत से खाजगान ख्वाजा हिंदुस्तान होगा, मेरे तरीकत से बहाउद्दीन नक्शबंदी, मुज्तदा अल-फिसानी, सारे कादरियत, सारे चिश्तियत, सारे नक्शबंदी, मुजद्दिदी, सारे फैज, ये फैज इमाम हुसैन से मिली, ये फैज आका ने जफर सादिक से दी, ये फैज इमाम बाकर सादिक से, ये इमाम अली रजा से, सारे इमामों से मुस्तफा जाने रहमत मुझे फैज देकर गया। तब जाकर उनके शेख ने कहा, ए तफ्ताजानी, अब मुझे अफसोस होता है कि मैं क्यों जाहिल नहीं हुआ, मुझे अफसोस होता है कि मैं जाहिल क्यों नहीं हुआ। अगर जाहिल होता तो दीदार मुस्तफा मिलता, अगर जाहिल होता तो दीदार मुस्तफा मिलता। ए तफ्ताजानी, तुझ पर नाज करूं, खादिम बनना चाहा और मखदूम तुझे खादिम बना दूं। सुभान अल्लाह कहिए ना। सुभान अल्लाह।